Today in this video I am going to teach you chapter 13 and the name of the chapter is Our Neighborhood. The name of the chapter is Our Neighborhood. Neighborhood means हमारे आस पड़ोस में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारा neighborhood कहलाता है। मीन्स हमारे पड़ोसी आस पड़ोस की चीज़ें जो भी होती है वो नेबर्स में आती है या नेबरहुड कहलाती है। The places near the house make the neighborhood. हमारे घर के आसपास जो भी प्लेस होती है, जो भी जगहें होती हैं, वो क्या होती है? हमारी नेबरहुड होती है, हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं। We get all the facilities needed for day-to-day living in our neighborhood. अपने नेबरहुड में या आस पड़ोस की जगह पे हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें डेली डे टू डे की लाइफ में, मतलब जिसकी ज़रूरत हमें डेली पड़ती है। The things which we need daily in our daily life we get from our neighborhood. Let us read about some neighborhood services. Now in this chapter we are going to read about some neighborhood services. Means वो services जो हमें जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोवाइड होती है। First neighborhood services is post office. We can buy postcards, envelopes and stamps from the post office. Post office से हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं? Postcards, envelopes and stamps. ये सभी चीज़ें हम कहाँ से खरीद सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से। We write letters to our relatives and friends and send them by post. अपने relatives को या friends को हम लेटर लिखते हैं और हम क्या करते हैं? हम उसे पोस्ट करते हैं। We write letters and we post it whenever we meet to our family members or to our friends. The postman delivers the letter to the correct address. And who delivers the letter? जो भी लेटर हम लिखते हैं वो डिलीवर कौन करता है? The postman delivers all the letters to the written addresses. जो भी एड्रेस लेटर में लिखा होता है उसे पोस्ट कौन करता है? पोस्टमैन करता है। We can also send money to a person living in other city using money order facility. अगर हमारा कोई भी रिलेटिव शहर से मीन सिटी से बाहर रह रहा है और हम उसे पैसे भेजना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू सेंड मनी वी कैन सेंड इट बाय मनी ऑर्डर। हम किससे भेज सकते हैं? मनी ऑर्डर फैसिलिटी से। मनी ऑर्डर फैसिलिटी हमें कहाँ मिलती है? पोस्ट ऑफिस में। तो व्हाट फैसिलिटीज डू वी गेट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस? वी कैन बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवेलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. We can send letters to our relatives or our friends, and when we write letters, it is posted by post office. And who takes that letters to the written addresses? Postman. We can also use money order facility which is available in post office. If you want to send money to our any relative and he is living in any other city, we can use money order facility. Bank. We can keep money, jewelry and other valuable items safe in a bank. What do we do in a bank? We keep our money, our jewelry and other valuable things और भी कीमती चीजें, money, jewelry और भी कीमती चीजें जो हमारे पास होती है उसको हम कहाँ रख सकते हैं? बैंक में. We can deposit money and withdraw it when we need it. हम कभी भी वहाँ बैंक में जाकर मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं, मीन्स निकाल भी सकते हैं। मार्केट. A market has many shops. जब आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखती है ना? We go to market to buy things of daily use. जब भी हमें कोई भी डेली यूज की चीजें चाहिए होती है हम कहाँ जाते हैं? We go to market. We buy fruits and vegetables from a green grocer. जब भी fruits and vegetables खरीदना होता है
confectioner to buy bread, butter, biscuits, cakes and pastries. जब भी हमें bread, butter, biscuits, cakes and pastries ये सब चीजें चाहिए होती है तो हम कहाँ जाते हैं? कन्फेक्शनरी जाते हैं। जहाँ से हमें ब्रेड, बटर, बिस्किट, केक्स ये सब चीजें मिले उसको कन्फेक्शनरी बोलते हैं। जहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिले या जो बेचता है उसको ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। We can buy food, grains, pulses, flour, sugar, soap and other things of daily use from a general store. हमें grains, pulses, sugar, soap ये सब कहाँ से मिलता है? जनरल स्टोर से। ये सब सामान हमें जनरल स्टोर से मिल जाता है। We can buy notebooks, pencils, pens, craft items and colors from stationery shop. स्टेशनरी शॉप से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है? नोटबुक्स, जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होंगी जैसे नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, क्राफ्ट आइटम्स, कुछ कलर्स, ये सब हमें स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है। A florist sells flowers. फ्लोरिस्ट क्या बेचता है? फ्लावर्स। जो फ्लावर्स बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। Often we need flowers for special occasion like festivals, marriages or for workshop. हमें फ्लावर्स की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? फेस्टिवल्स में, मैरिजेस में, वर्शिप में हमें फ्लावर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो फ्लावर्स खरीदने हम किसके पास जाते हैं? फ्लोरिस्ट के पास। We go to a florist to buy flowers. हम फ्लावर्स खरीदने फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं। We go to a chemist to buy medicines. जब भी हमें मेडिसिन खरीदनी होती, दवाइयाँ, हम कहाँ जाते हैं? केमिस्ट। If we want to buy all the things under one roof, we go to the supermarket. अगर हमें ये सारी चीजें एक ही जगह चाहिए, हम इधर उधर नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, तो हम कहाँ जाते हैं? सुपरमार्केट। A neighborhood also has the different places of worship. हमारे आसपास पूजा करने के लिए भी अलग अलग जगह होती है, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना। सबके घर के पास मंदिर, मस्जिद, चर्च, टेम्पल, मॉस्क ये सब होता ही है। तो जब भी हमें वर्शिप करनी होती है तो हम तुरंत चले